Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYJC secretarial practice. We have already completed our first chapter, that is Introduction to Corporate Finance, and then we have started with the second chapter, that is Sources of Corporate Finance. And in this video also we are going to continuing with the same chapter, that is Sources of Corporate Finance, and we are going to discuss about commercial banks. Okay, but before that let's revise our code. That SR means what? S means shares, R means reserves. SR means what? They are the own fund to the company and they are internal sources of fund. Okay, ये आपको याद रखना है अच्छे से. Now let's talk about DP LLB. D means debenture, P means public deposit, L means loan from bank, second L means loan from financial institution and bonds. So DP LLB is nothing but the borrowed fund, debt fund, and when company is taking money from this source, so company is taking that money in a form of loan because company have to repay those amount. Now DP and LLB is nothing but the external sources of fund to the company. Now when you talk about LLB, so first L is our loan from bank. So we are going to discuss about loan from bank now. So loan from bank is nothing but the commercial bank. Okay, now what is the meaning of bank? Bank is a financial institution, we all know, where money transactions take place. So the person who wants to save their money and who wants to deposit their money in a bank, so bank accept the money from those people, and those who are in need in fund, and those who are need in fund, bank provides the loan to those people or those businessmen. Okay, so that is why bank is also becomes the sources of fund to the company. Whenever company required fund, company take the loan from the bank. Okay, but what happened, basically if you talk about commercial banks, so commercial bank disburse or gives the loan to the company in different forms, that means schemes. So basically in this commercial bank we are going to discuss about some schemes. ओके अभी हम लोग देखते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. Commercial banks, so there are number of sources of financing, short term and medium term business requirement. Okay, when you talk about business, so business always required money. Sometimes business required short term money and sometimes business required medium term or long term. So basically commercial bank is also a source of fund to the company. Among these commercial banks, among this commercial bank found the most important source. Okay, so commercial banks plays a very important role in providing the money to the company. Commercial banks play an important role in corporate financing in India. Okay, so corporate financing means what? Corporate means organization, business. So whenever business in India, whenever businessmen need money, they can take the loan from the bank. Commercial banks by introducing variety of deposit schemes. ओके, तो ये स्कीम जो मैं बोल रहा हूँ यही हम लोग स्कीम डिस्कस करने वाले हैं. मेन चीज़ स्कीम ही है जो हमको पढ़ना है. ओके, तो कमर्शियल बैंक by introducing variety of deposit schemes tailored to individual depositors' need, mop up savings of people and make use of these savings to meet various requirements of corporate enterprises. Okay, so same meaning हुआ. Bank is accepting the money from the people and saving their money. Okay, and those who are need in fund, that means that businessman, that corporate, that organization, bank is providing the loan to those corporate. Understood? आगे देखते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कमर्शियल बैंक्स असिस्ट, दैट मीन्स हेल्प टू कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस. ओके, वी ऑल नो दैट corporate enterprises taking the money from the bank, that is why bank is assisting or helping to corporate enterprises. ऑल राइट. ओके, कौन कौन से फॉर्म में वो लोग हेल्प करते हैं वो देखते हैं. बैंक किस तरीके से एक बिजनेस का, एक कॉर्पोरेट का, एक ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प करता है, दैट वी आर गोइंग टू सी. नंबर वन, by granting term loans to companies. So we all know whenever company required fund, company can take the loan from the bank. Okay, the first thing. Second thing, by subscribing to shares and debenture of the company. अभी एक काम तो हमको पता है that bank is giving loan to the company, but at the same time bank is also helps the organization by subscribing or purchasing the shares and debenture of the company. Okay.
Now underwriting the issue of securities of the company. Now what is the meaning of underwriting? Say example, as a company if I am going to issue 1000 shares, अगर मैंने 1000 शेयर इशू करने के लिए बोला है, तो जब तक कि मेरा पूरा का पूरा शेयर बिक नहीं जाता है, सब्सक्राइब नहीं हो जाता है, तब तक के आई विल नॉट बी एबल टू टेक द मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स. ये एक कंडीशन है. से एग्जांपल 1000 शेयर्स के लिए बोला तो पूरा का पूरा 1000 शेयर मेरा बिकना चाहिए. अब यहाँ पे क्या हो गया, सपोज 1000 शेयर्स है जिसमें से 800 शेयर्स सब्सक्राइब्ड हो गया है. नाउ रिमेनिंग 200 शेयर इज़ लेफ्ट. सो अगर जब तक ये 200 शेयर बिकेगा नहीं, देन आई विल नॉट बी एबल टू टेक द मनी फ्रॉम माई इन्वेस्टर्स. तो ये केस में क्या होगा, जो बैंक होगा, बैंक विल परचेज दोज 200 रिमेनिंग शेयर्स. ओके, तो इसी को बोलते हैं अंडर राइटिंग द इशू ऑफ सिक्योरिटीज़. आगे देखेंगे. Commercial banks also play an important role in providing short-term finance. So commercial bank provide the short-term finance to the organization. That is why it's play a very important role in corporate enterprises. They have become primary source of financing working capital of business. See, short term के लिए है, मतलब working capital के लिए होगा. What is the meaning of working capital? Working capital means day-to-day expenses of the organization, day-to-day expenses of the corporate. Okay, so to fulfill those requirements, corporate can take short-term loan by the bank. Understood? आगे देखेंगे. इन इंडिया प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल आर बैंक क्रेडिट एंड ट्रेड क्रेडिट. अब जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा ले रहा है, वो किस फॉर्म में ले रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग बैंक क्रेडिट एंड ट्रेड क्रेडिट. अंडरस्टूड? दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन कमर्शियल बैंक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. First thing, that banks have introduced many innovative schemes. Okay, innovative scheme for disbursement, that means to give of credit. They are as follows. Okay, now let's see what are these schemes. So the number one scheme, that is overdraft facility. Now what is the meaning of overdraft facility? Overdraft facility is a facility which is given by the company to the current account holders. ओके, और करंट अकाउंट होल्डर्स कौन होते हैं? दोज हु आर बिजनेसमैन. सपोज इफ़ यू आर रनिंग योर बिजनेस, सो यू हैव टू ओपन करंट अकाउंट. बीइंग अ जनरल पब्लिक लाइक अस, जैसे भी हम लोग कोई बिजनेस नहीं कर रहे, इफ़ यू गो एंड ओपन अकाउंट, सो यू कैन ओपन सेविंग अकाउंट. बट इफ़ यू आर डूइंग अ बिजनेस, इफ़ यू आर रनिंग अ बिजनेस, इन दिस केस यू हैव टू ओपन करंट अकाउंट. ओके, एंड ओनली करंट अकाउंट होल्डर्स एंजॉय द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ओवरड्राफ्ट, ओवर का मतलब होता है ज़्यादा, ड्राफ्ट का मतलब होता है निकालना. ओके, दैट मीन्स एग्जांपल, आपके अकाउंट में भी 10 लाख रुपीज़ है. ओके, ये आपका पैसा है जो आपके अकाउंट में बैंक में रखा हुआ है. बट अभी आपको 15 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट हो गया. 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में है, बट यू रिक्वायर्ड मोर 5 लाख रुपीज़. सो आप क्या कर सकते हो, जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, यू कैन यूज़ दिस फैसिलिटी एंड यू कैन विदड्रॉ 5 लाख रुपीज़. दैट मीन्स आप 10 लाख आपके अकाउंट में है, बट आप कितना निकाल रहे हो? 15 लाख रुपए निकाल रहे हो. जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपीज़ आपको मिल रहा है, दिस इज़ योर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. हाँ, बैंक इसका एक लिमिट रखता है. ऐसा नहीं है कि 5 लाख आपको चाहिए तो 5 लाख आपको मिल जाएगा. अगर बैंक ने आपको 5 लाख का लिमिट दिया है तो यू कैन विदड्रॉ 5 लाख. अगर बैंक ने आपको 2 लाख का लिमिट दिया है तो यू कैन विदड्रॉ ओनली 2 लाख रुपीज़. अगर आपका से एग्जाम्पल 5 लाख रुपये आपका लिमिट है, बट यू रिक्वायर्ड ओनली 2 लाख रुपीज़, तो यू कैन विदड्रॉ 2 लाख रुपीज़ ओनली. अंडरस्टूड? एंड एक पीरियड होगा, ऑन दैट डेट, ऑन दैट पीरियड यू हैव टू रीपे द अमाउंट. ओके, क्लियर? यही होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. अभी इसको देखते हैं अच्छे से हम. अ कंपनी हैविंग करंट अकाउंट विद बैंक इज अलाउड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ओके, तो यहाँ से ये समझ में आ गया दैट ओनली करंट अकाउंट होल्डर्स कैन एंजॉय द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. नंबर 1. आगे देखेंगे. द बोरोवर कैन विदड्रॉ फंड्स एज एंड व्हेन नीडेड. Borrower, that means that holder of account holder, that person can withdraw, that business can withdraw the fund as and when needed. Whenever they need money, they can withdraw the money from their account. He is allowed to overdraw on his current account up to the credit limit which is sanctioned by bank. ओके, बट कितना निकाल सकते हो? पैसा तो निकाल सकते हो, समझ में आया, एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हो, बट कितना?
विच इज़ सेंक्शन बाय द बैंक, जितना बैंक आपको बोलेगा उतना ही यू कैन विदड्रॉ, उससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते, कम निकालोगे इट्स ओके। से एग्जांपल 5 लाख का लिमिट दिया है बैंक ने, तो यू कैन विदड्रॉ 5 लाख और लेस देन 5 लाख, बट यू कांट विदड्रॉ मोर देन 5 लाख रुपीज़, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ओके। विदिन दिस स्टिपुलेटेड लिमिट एनी नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स आर परमिटेड, ओके। इतने पीरियड के अंदर जितनी बार आपको पैसा चाहिए आप निकाल सकते हो, बट रिमेंबर वन थिंग कि आपका जो लिमिट है उतना ही, ओके। नाउ सी, रीपेमेंट कैन बी मेड वेन एवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, ओके। रीपेमेंट आप कभी भी कर सकते हो। से एग्जाम्पल बैंक ने आपको बोला इफ़ यू आर विदड्रॉइंग द मनी, इफ़ यू आर यूजिंग द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट, सो आफ्टर यूजिंग दिस फैसिलिटी यू हैव टू रीपे द अमाउंट विद इन 1 मंथ, मतलब 1 महीने में आपको देना पड़ेगा। तो दिस इज़ योर स्टिपुलेटेड टाइम, ओके, दिस इज़ योर टाइम पीरियड, ओके, ड्यूरिंग विच यू हैव टू रीपे द अमाउंट टू द बैंक। द इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट विदड्रॉन, ओके। इसका मतलब क्या होता है, यू आर गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट इफ़ यू आर टेकिंग द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ऑल राइट, बट बैंक ने आपको दिया है 5 लाख का लिमिट एंड आपने जो विदड्रॉ किया है दैट इज रुपीज़ 2 लाख ओनली, सो यू आर गोइंग टू पे इंटरेस्ट ऑन 2 लाख रुपीज़ ओनली, ओके। 5 लाख का लिमिट है आपका, बट 5 लाख आपने यूज़ किया, नो, आपने यूज़ कितना किया, यू यूज ओनली 2 लाख रुपीज़, दैट इज़ वाई यू आर गोइंग टू पे इंटरेस्ट ऑन 2 लाख रुपीज़ ओनली, क्लियर। आगे देखेंगे, ये था आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट, कैश का मतलब होता है कैश, सबको पता है पैसा, क्रेडिट का मतलब होता है उधारी, ओके। तो यहाँ पे आपको उधारी पे मिल रहा है, बट क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। सपोज इफ़ यू आर टेकिंग द मनी फ्रॉम द बैंक, तो बैंक इज़ गिविंग यू द मनी, बट इफ़ यू आर टेकिंग द मनी सो यू हैव टू गिव सम सिक्योरिटी टू द बैंक। सिक्योरिटी मीन्स व्हाट, आपका घर का पेपर, आपका कोई, अगर आपने कोई शेयर परचेज किया है तो शेयर सर्टिफिकेट, ऐसे आपको कुछ सिक्योरिटी बैंक को देना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गेट द कैश क्रेडिट फैसिलिटी बाय द बैंक, क्लियर। चलो इसको देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग हेड, सो कैश क्रेडिट इज वन ऑफ द पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग। आगे देखेंगे, दिस फॉर्म ऑफ क्रेडिट इज ऑपरेटेड इन सेम मैनर एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दैट मीन्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड कैश क्रेडिट दे आर वन एंड द सेम, द ओनली डिफरेंस दैट वी आर गोइंग टू सी, अभी हम लोग देखेंगे कि दोनों में डिफरेंट क्या होता है। द बोरोवर कैन विदड्रॉ अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट अकाउंट अप टू अ स्टिपुलेटेड लिमिट बेस्ड ऑन सिक्योरिटी मार्जिन, जितना आपने सिक्योरिटी दिया है, जो सिक्योरिटी आपने दिया है उस हिसाब से बैंक इज सपोज टू गिव लोन टू यू, लोन इन द सेंस कैश क्रेडिट, क्लियर। नाउ कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट प्लेज्ड और हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव सिक्योरिटीज, दैट मीन्स इफ यू आर टेकिंग द मनी फ्रॉम द बैंक, so in this case you have to give some security to the bank, and this is the difference between overdraft facility and cash credit. now overdraft facility में भी आपको पैसा मिल रहा है, बट कैसे मिल रहा है आपको, यहाँ पे यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग फॉर अ सिक्योरिटी, फिर भी आपको फैसिलिटी मिल रहा है, बट कैश क्रेडिट फैसिलिटी के लिए यू हैव टू गिव सम सिक्योरिटी टू द बैंक, ओके। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये दोनों में डिफरेंट है, दोनों का डिफरेंट है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड एंड नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट सेंक्शन, दैट मीन्स से एग्जांपल बैंक ने सेंक्शन किया आपको 1 लाख रुपीज़, आपने एज अ लोन लिया कैश क्रेडिट 1 लाख रुपीज़, नाउ यू हैव टू पे इंटरेस्ट, बट आपने 50,000 रुपीज़ रीपे कर दिया, ओके। 1 लाख रुपीज़ लोन लिया था आपने, कैश क्रेडिट लिया था, बट आउट ऑफ 1 लाख रुपीज़ यू हैव रीपेड 50,000 रुपीज़, नाउ रिमेनिंग अमाउंट is 50,000 rupees, so when you going to pay interest, so you are going to pay interest on 50,000 only, जितना पैसा आपको देने का बाकी है on that amount you are going to pay interest, clear everyone। आगे देखते हैं, ये था आपका कैश क्रेडिट, ओके। नाउ कैश लोन्स, कैश लोन इज ऑल्सो अ सिमिलर, सो बेसिकली इट्स जस्ट अ लोन, ओके। सो इफ़ अ बिजनेसमैन वांट मनी, बिजनेसमैन कैन गो एंड टेक द लोन फ्रॉम दी बैंक, देखेंगे इसको भी अच्छे से। अंडर दिस
अंडर दिस द टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज क्रेडिटेड बाय बैंक टू द बोरोवर्स अकाउंट। तो जो आपका अकाउंट होगा, यू कैन टेक लोन फ्रॉम द बैंक, तो आपके जो अकाउंट होगा उसके अंदर डायरेक्ट बैंक मनी ट्रांसफ़र कर देगा। ओके, तो इसके लिए इसको बोलते हैं कैश लोन्स। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन एक्चुअल बैलेंस आउटस्टैंडिंग, दैट मीन्स इंटरेस्ट इस पे चार्ज होगा जो पैसा बचा हुआ है, जो पैसा देने का बाकी है, ऑन दैट अमाउंट यू आर गोइंग टू पे इंटरेस्ट। ओके, नाउ लास्ट वन दैट इज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, सो 3 तो इजी था और 4th जो है ये भी इजी है बट थोड़ा सा लेंदी है इसको समझने के लिए। यहाँ पे एज यू कैन सी 3 पार्टीज़ है। मिस्टर एस दैट मीन्स मिस्टर सेलर, जिसको हम लोग ड्रावर बोलेंगे। ओके, यहाँ पे सेकेंड है मिस्टर बी मीन्स बायर, और बायर को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रावी। एंड मिस्टर बैंक। ओके, मिस्टर बैंक मतलब बैंक। तो अभी यहाँ पे देखो, बैंक को पहले साइड में कर दो, अभी सिर्फ ये 2 चीज़ को देखो आप। ओके, ये 2 चीज़ को देखो। अभी जो सेलर है, सेलर विल सेल द गुड एंड बायर विल परचेज द गुड्स। तो जनरल ट्रांजेक्शन जो होता है वो कैसा होता है, सेलर ने गुड्स दिया, बायर ने रिटर्न में क्या दिया, कैश दिया, पैसा दिया। ओके, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। बट ये केस में क्या हो रहा है, सेलर गुड्स दे रहा है बट बायर के पास अभी पैसा नहीं है। तो बायर ने बोला सेलर को दैट इफ़ आई एम टेकिंग गुड्स फ्रॉम यू सो आई विल रीपे द अमाउंट आफ्टर 1 मंथ। 1 महीने के बाद में मैं आपका पैसा आपको रिटर्न कर दूंगा। तो सेलर ने जो गुड्स बेचा मिस्टर बी को, उसका वैल्यू था 1 लाख रुपीज़। तो मिस्टर बी ने गुड्स ले लिया, लेकिन मिस्टर एस ने क्या बोला, मैं गुड्स दूंगा, गुड्स मैं देता हूँ, बट अब पैसा जो दोगे आप मेरे को 1 मंथ के बाद में ही दो। बट एक पेपर होगा, एक बिल होगा, ऑन दैट बिल आई एम गोइंग टू राइट योर नेम, आई एम गोइंग टू राइट द प्रोडक्ट विच आई एम सेलिंग टू यू, आई एम गोइंग टू राइट दैट यू आर प्रॉमिसिंग दैट यू आर गोइंग टू रीपे द अमाउंट आफ्टर 1 मंथ। सारा डिटेल लिखने के बाद में ये बिल मैं आपको सेंड करूँगा, यू हैव टू साइन ऑन दैट बिल, और वो बिल आप मेरे को दे दो, देन मैं आपको गुड्स दे दूँगा। तो मिस्टर बी ने बोला ओके। ओके, तो मिस्टर एस ने गुड्स भी दिया और उसने बिल भी साइन करके मिस्टर एस को दिया, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो गया। बट यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे कैश के बदले मिस्टर बी ने क्या किया, साइन करके वो बिल मिस्टर एस को दे दिया, मतलब सेलर को दे दिया। क्लियर। बट प्रॉमिस क्या किया मिस्टर बी ने कि 1 महीने के बाद में 1 मंथ, ओके, 1 मंथ के बाद में पैसा रीपे करेगा। बट क्या हो गया, आफ्टर 10 डेज जैसे ही कंप्लीट हुआ ये ट्रांजैक्शन को, ये डील को, मिस्टर एस सेलर को जो है ना पैसे का रिक्वायरमेंट हो गया, अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो गया। तो ये केस में मिस्टर बी तो देगा नहीं, वाई, बिकॉज मिस्टर बी ने बोला आई एम गोइंग टू रीपे योर अमाउंट आफ्टर 1 मंथ। तो ये केस में क्या होगा, एस को तो पैसा चाहिए, तो एस बी के पास नहीं जाएगा, एस जो है वो डायरेक्ट जाएगा कहाँ पे, बैंक के पास। ओके, बैंक को बोलेगा आई नीड मनी, तो बैंक बोलेगा ओके आई विल गिव यू द मनी बट डू यू हैव एनी सिक्योरिटी। तो मिस्टर एस बोलेगा यस आई हैव वन सिक्योरिटी, दैट मिस्टर बी हैव साइन वन बिल, आई एम हैविंग दैट बिल विथ मी, एंड मिस्टर बी इज सपोज टू रीपे माई अकाउंट, रीपे माई अमाउंट आफ्टर 1 मंथ। 10 डेज हो गया है, 20 दिन बचा हुआ है, 20 दिन के बाद में ही सपोज टू रीपे द अमाउंट। तो बैंक ने बोला ठीक है, काम का वो बिल जो है वो मुझे दे दे। ओके, और रिटर्न में 1 लाख रुपए का बिल है वो, लेकिन बैंक क्या करेगा, पूरा 1 लाख रुपये नहीं देगा। बैंक कितना देगा, 95,000 देगा एग्जाम्पल। ओके, 95,000 दिया, तो कितना कम दिया, 5,000 रुपीज़ कम दिया। ओके, बैंक ने अभी जब बैंक ने मिस्टर बी से पैसा लिया, बिल दिया इसको, तो मिस्टर बी ने पूरा 1 लाख रुपीज़ जो है ना वो पे किया टू द बैंक। बैंक के पास से कितना गया, 95,000 रुपीज़। ओके, 95,000 रुपीज़ जो है बैंक ने किसको दिया, मिस्टर एस को दिया, सेलर को दिया। और मिस्टर बी से, बायर से बैंक ने कितना रिसीव किया, कंप्लीट 1 लाख रुपीज़। ओके, 1 लाख रुपया पूरा का पूरा मिस्टर बी यानी मिस्टर बी ने पे किया किसको, बैंक को। ओके, तो बैंक ने कितना कम दिया, 5,000 रुपीज़ कम दिया। तो ये जो बैंक ने क्या किया, बैंक ने बिल को डिस्काउंट किया। ओके, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। क्लियर। अभी जो बुक में आपके दिया हुआ है दैट वी आर गोइंग टू सी।
Discounting bills of exchange. The drawer of the bill, that means the seller, can receive money from drawee, that is the buyer, on due date or after the due date. Due date and after the due date. ड्यू डेट क्या हो जाएगा? दैट इज़ योर 1 मंथ. जो 1 मंथ का प्रॉमिस बोला था वो 1 मंथ है आपका ड्यू डेट. क्लियर? ड्रावर कैन रिसीव मनी बिफोर ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक. बिफोर ड्यू डेट मतलब 1 महीने से पहले. बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक. बैंक के साथ में डिस्काउंट करके. दिस इज़ नथिंग बट सेलिंग द बिल टू द बैंक. तो मिस्टर एस, दैट मीन्स सेलर क्या कर रहा है? बैंक को वो बिल बेच रहा है. क्लियर? द बैंक गिव मनी टू ड्रावर लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द बिल. अब फेस वैल्यू से कम दे रहा है, मतलब 1 लाख रुपए का फेस वैल्यू था, बैंक ने कितना दिया? 95,000. दैट इज लेस देन द फेस वैल्यू. क्लियर? 10 बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर ट्रेड बिल्स. ये क्या होता है? ट्रेड बिल होता है. दे आर एक्सेप्टेड बाय बैंक एंड कैश इज एडवांस अगेंस्ट देम. ओके, बैंक क्या करता है? उस बिल को एक्सेप्ट करता है. एक्सेप्ट करने के बाद में पैसा एडवांस में दे देता है किसको? सेलर को. ओके, दैट इज ड्रावर को. क्लियर? ये था आपका डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ओके, you can pause the video and you can write and you can make your own notes, and if you have any doubt you can ask me in comment section. Okay, जितनी बार भी आपको जो भी डाउट होगा you can ask me. I am ready to answer you for your all the questions. Okay students, so till then thank you very much.